And the students, in my last class, I explained you what are functions. In detail, I explained all about the functions to you. Today, let us take what type of functions are known as real functions and what type of functions are known as real valued functions. Function in which domain and codomain both are real numbers. As I explained you what is the domain and codomain and range of the function, let me explain it once again to you. Suppose there is a function f such that it's jumping from x to y. This is x and this is y, and this is x and y. Suppose this is 1, 2, 3 and this is 1, 4, 9, like this it is. Then, and here it is course 10 also. So this x, this is the domain, x set, this first set, this is this domain, and this is this y set, means this is codomain, this is codomain, and these are the images of this function. Then this 1, 4, 9 set of these elements is known as a range. So I made it clear all these definitions to you in my previous session also. So now what type of functions are known as real functions? Those functions in which this domain and codomain, means this full set and this, both of these sets are real numbers. This domain, because this is domain. What is this? Domain. And what is this? Codomain. When both of these are real numbers, the set of real numbers, this is also set of real numbers, this is also set of real numbers, then it is known as real function. And what is real valued function? Real valued functions are those, suppose there is a function f such that is mapping from a to b, then it is called real valued function when real valued function, value means the images, images come from this set, value means the images are coming from this set. So if the images means the range, the second set, that is the subset of the real numbers. This is not real numbers, but only this is the real number. तो यानी ये रियल नंबर नहीं है, आपका डोमेन आपका सिर्फ ये रियल नंबर है, तब आपका ये जो है क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है. और इसमें इन दोनों का रियल नंबर्स में से, मतलब ये आपका x की वैल्यूज और y की जो वैल्यूज है, जो इनके एलिमेंट्स हैं, ये दोनों ही रियल नंबर्स में से होने चाहिए, चाहे वो अब रेशनल. अब रियल नंबर्स में क्या क्या होता है? रियल नंबर्स इज इंक्लूडिंग ऑल द नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, ऑल दीज आर योर रियल नंबर्स. तो वो किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं होने चाहिए वो. ठीक है, we will study about the complex numbers in another chapter. तो complex numbers नहीं होने चाहिए. तो उसके अलावा जो बाकी है रियल नंबर्स, वो यहाँ पर दोनों जगह हो सकते हैं. तो ये, और whatever we will study in this chapter, that will be related with only real functions. हम सिर्फ real functions के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर. अब पढ़ते हैं algebra of functions के बारे में. अगर सपोज करो देयर आर टू फंक्शंस और ये दोनों रियल फंक्शंस बोले गए हैं, एक f फंक्शन है, एक g फंक्शन. रियल फंक्शंस का मतलब इनका डोमेन एंड कोडोमेन बोथ आर सेट ऑफ रियल नंबर्स. ये भी सेट ऑफ रियल नंबर्स में से है. तो अब उसने बोला कि इफ इट इज सो कि दैट देयर आर टू रियल फंक्शंस, f एंड g आर टू रियल फंक्शंस, देन if we add these two functions or we subtract these two functions, दोनों functions को अगर add करते हैं या subtract करते हैं, then we again get a function, new function, which will also be again a real function. Let me explain you with the help of one example. Suppose
fx एक फंक्शन है आपके पास 3x plus 9. Okay, this is a real valued function. Gx is another function that is supposed 2x square plus 5x. Suppose this is another function. If I add these two functions, then it would become 2x square, then 5x plus 3x, 8x plus 9. So whatever is this we have obtained by adding these two functions, this is again a function. This is also again a function. Now, according to the algebra of the functions, if we add any two real functions, then whatever the function we obtain, that is again, this is a new function, and that will also be a real function. This is the another function, name it hx. तो ये जो hx आया कैसे आया? इसको हमने when we have added these two functions, then we have obtained one more new function, या फिर इसको इस तरीके से डिनोट किया गया. This is f plus gx, f plus gx, या फिर हम इसको नाम नया दे देते हैं, that is hx, which is obtained by adding, or we can obtain it by subtracting also. अगर subtract कर देते हैं, if you subtract, तो क्या होगा? f में से g को माइनस करो, तो this minus this होगा. तो 3x, पहले तो 3x plus 9 minus 2x square plus 5x, तो ये क्या हो जाएगा? 3x, this is 3x minus 5x minus 2x minus plus 9 minus 2x square. So it can be written as minus 2x square minus 2x plus 9. So this is also a real function which is obtained by subtracting these two functions. So it is denoted by f minus g of x. Now next is, if you multiply your function, any real function, if you multiply that function by a scalar, then you will get another function that will also be a real function. Suppose this is a function fx. If I multiply it with the 3, if I multiply, suppose this is a scalar, I have written it as k, then this will be like this, multiplied with 3, this is, so whatever this function you have obtained, this is a new function which is obtained by multiplying this real function with the scalar. आपने जब इस real function को इस scalar से multiply किया, आपको एक नया function मिल गया. This is also a real function, and it has been written, इसको हमने ऐसे लिख दिया कि 3f of x. Okay. Next is, if there are two functions and if we multiply these two functions, there are two real functions, fx suppose this, and gx is another function that is supposed 2x minus 5. And if I multiply these two functions, then fx into gx, if you multiply these two to 3x plus 9 multiplied with the 2x minus 5, so what would be obtained? This is 6x square minus 15 plus 18 means plus 3x, and this is 9 this. Okay. Now again, this is again a real function. So we can write it as fg of x. So by multiplying two real functions, we can obtain one more function which is also a real function. Now come to next question. This is called multiplication of the two functions. Now this is when two functions are divided, means one function is divided by the other function. Then so it is fx divided by gx is equal to 3x plus 9 upon 2x minus 5. This is quotient of two real function. Fx is a real function, gx is a real function. This will also be defined, this will also be a real function, but there will be one condition under which it will remain a real function. And what is that condition? That this denominator should not be equal to 0. आपको पता है कि कभी भी आपका
अगर डिनोमिनेटर में 0 हो जाता है देन इट बिकम्स अनडिफाइंड, यानी कि आपका ये जो gx है, ये gx है, ये 2x माइनस 5 कभी 0 नहीं होना चाहिए। 2x माइनस 5 किसके इक्वल है? gx जो है, तो gx इज नॉट इक्वल टू 0। इस कंडीशन के अगर मैं इसको अगर यहाँ पर देखूं तो 2x माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x शुड नॉट बी इक्वल टू 5/2। यानी कि ये जो आपका क्वोशंट फंक्शन है, क्वोशंट ऑफ टू रियल फंक्शंस f upon gx, it can be denoted by this. This is again a real valued function, but it will remain defined real value function. For that this condition must be satisfied, means the x should not be equal to 5/2. Now let us start next topic, that is the functions. Some functions, actually there are infinite functions, but here we are considering only those functions which have been given in your syllabus, NCERT syllabus. We are going to take those functions. I will explain you how these functions, the graph of these functions are drawn, and what is the domain and the range of these functions. Now in this series I have taken first function, that is the argumentative function. So function y is equal to fx, where fx is defined that f, देखो y is equal to x हो गया, ठीक है जी। This is your function, y is equal to fx। इसका मतलब क्या है आप समझिए, ये आपके पास है x और ये है आपका y, ठीक है। आप आइडेंटिटी फंक्शन में एक्चुअली होता ये है कि आपने जो जो नंबर्स यहाँ पर लिए, आइडेंटिटी y is equal to x, तो y is equal to x, यानी 1 लेंगे तो 1 आएगा, 2 लेंगे तो 2 आएगा, 3 लेंगे तो 3 आएगा। आइडेंटिटी मीन्स आइडेंटिकल, सेम इमेजेस आर देयर, ओके। तो अगर आप इसका ग्राफ भी बना के, जैसे आपने अपनी पिछली क्लासेस में ग्राफ बनाते थे, तो 1 का 1 है, -1 का -1 है, 2 का 2 है, तो whatever the value of the x you are going to put, the same value you are going to get of y. So क्या है ये, जो वैल्यू आप x की रखते जा रहे हैं, y की वही वैल्यू आपके पास वापस आती जा रही है, ठीक है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, इसके अगर आप प्लॉटिंग करेंगे तो क्या लग रहा है आपको, कैसा ग्राफ होगा इसका? जीरो पर रखेंगे तो 0, x की वैल्यू 0, तो y 0 आ रहा है आपके पास। तो ये है 0 पर 0, 1 पर 1 है, 2 पर 2 है, तो आपका ग्राफ -1 पर -1 है। तो ये ग्राफ इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू योर ओरिजिन। ये बन रहा है। लेकिन अब जब भी कोई भी मैं ग्राफ आपको कराऊंगी, उसके साथ इंपॉर्टेंट है उसका डोमेन और रेंज, डोमेन ऑफ फंक्शन एंड रेंज ऑफ दैट फंक्शन। इसमें आप ये बताइए, डोमेन होता है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ इनपुट, आप क्या क्या वैल्यूज x की इनपुट कर सकते हैं इसमें, जिससे कि आपकी y की मीनिंगफुल वैल्यूज हैं। क्योंकि ये सारे जितने भी हम पढ़ेंगे आपके सिलेबस में, कौन से फंक्शंस पढ़ेंगे जी? रियल फंक्शंस। रियल फंक्शंस का मतलब, रियल फंक्शंस का मतलब है कि आप की जो वैल्यूज है, आप जो x की वैल्यूज है, रियल फंक्शंस कौन से होते हैं? जिसमें आपका जो डोमेन है, यानी x की जो रियल वैल्यूज आप पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। और रेंज होता है आपका कि उन रियल वैल्यूज को पुट करने, कौन सी रियल नंबर्स में से, मतलब जो पूरा सेट रियल नंबर्स का है, उसमें से कौन से रियल नंबर्स हम पुट करें कि हमारा जो इमेज है, यानी हमारी जो रेंज है या सेकंड एलिमेंट हम जिसको बोल रहे हैं, इमेज बोल रहे हैं, वो मीनिंगफुल रहे, वो भी रियल नंबर्स में ही रहे, उससे बाहर ना जाए, ठीक है। तो यानी वो वेल डिफाइंड रहे, आपकी इमेज वेल डिफाइंड रहे। रियल फंक्शंस तभी रहेगा ना जब आपकी डोमेन यानी x की जो वैल्यूज है वो आप रियल नंबर्स में से ले रहे हैं, और उससे जो आंसर आएगा y वो भी रियल नंबर्स में ही रहे, उससे बाहर नहीं जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, आप x की क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हो कि आपका जो y है
उससे रियल नंबर्स, आप x की वैल्यू सब कुछ तो पुट कर रहे हो, ये देखो x की सभी वैल्यूज आप पुट कर पा रहे हो और उससे कॉरस्पॉन्डिंग हर जगह y की वैल्यू आ रही है आपके पास, कोई कट नहीं, कोई कुछ नहीं, हर जगह। और वैसे भी ये दोनों सेम है, जो जो x पुट करते जा रहे हो वही वही y आता जा रहा है आपके पास। तो आपका डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर्स यू कैन पुट, ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स आप लिख सकते हो। और ऑल रियल नंबर्स को हम कैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। और रेंज क्या आएगा इससे, वो भी सेम है क्योंकि जो डोमेन है वही रेंज है, क्योंकि y इज इक्वल टू x दिया है इसमें, तो वो भी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, या उसको बोलो ऑल रियल नंबर्स। अब मैं सेकंड आपका फंक्शन ले रही हूं, दूसरा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन कौन सा फंक्शन है, इसमें आपके पास है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और आपका एफ एक्स जो फंक्शन है वो यानी कि x की कोई भी वैल्यू आप पुट करते जा रहे हो, आंसर एक ही आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पर ग्राफ में दिखाऊं, देखो x तो आप कोई भी रियल नंबर पुट कर रहे हो, क्योंकि आप ध्यान रखना आप रियल फंक्शंस कर रहे हो, x की सिर्फ रियल नंबर्स में आपकी ही वैल्यू आप पुट करोगे। तो आप यहाँ से कोई भी रियल नंबर पुट कर रहे हो, आपके पास आंसर एक ही आता जा रहा है, बस एक आंसर आ रहा है, सबसे एक ही आंसर आ रहा है, एक ही आंसर आ रहा है। यानी एक कांस्टेंट, मान लो इसको कांस्टेंट है, फिक्स, फिक्स का मतलब कांस्टेंट आंसर आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड आपका कांस्टेंट फंक्शन। तो आप इसको हम कैसे दिखाएंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि मैंने इसका ये जो आंसर है दिस दैट इज c, तो y इज इक्वल टू c आ गया। अब इसका अगर आप टेबल भी बनाते हैं तो क्या बनेगा, x y, आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हो, यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हो, y की एक वैल्यू आगे मान लो ये है c, तो आपने x को 1 पुट किया या 0 पुट किया तब भी c आया, 0 पुट किया तब भी c, -1 पुट किया तब भी c, 1 पुट किया तब भी c, यानी आप कुछ भी वैल्यू पुट कर रहे हो, 0 1 2 3 -1 -2 व्हाटएवर वैल्यू ऑफ x you are substituting for every value। या ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यही पुट कर सकते हो, आप ये भी पुट कर सकते हो, -1.1 पुट किया तब भी c आ रहा है, 1.1 पुट किया तब भी c आ रहा है, बट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, कोई भी आप x की वैल्यू पुट कर रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पर c ही मिल रहा है, तो ये इसका ग्राफ लिया। अब इसका अगर हम डोमेन लिखेंगे तो डोमेन होता है कि आप x की क्या क्या वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ताकि ये रियल फंक्शन रहे। क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर पा रहे हैं आप, जिससे कि ये डिफाइंड है, किस तरीके से ये फंक्शन डिफाइंड है, तो ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, रेंज। लेकिन आपका आंसर क्या आ रहा है, आपकी इमेजेस क्या आ रही है, आपकी इमेजेस एक ही आ रही है, ये देखो c आ रही है हमेशा, आंसर हमेशा c आ रहा है, y की वैल्यू दैट इज योर इमेज ना, y इमेज होता है, तो क्या आ रहा है, दैट इज अ कांस्टेंट, तो रेंज हमेशा एक कांस्टेंट होगा, कोई भी एक कांस्टेंट होगा, कोई भी आप उसको सपोज करो, ये जो भी आपने इसमें यहाँ पर c है, तो दैट इज। नेक्स्ट फंक्शन आई हैव टेकन मॉड्यूलस फंक्शन। ये फंक्शन आप कह सकते हैं इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन बिकॉज इट विल बी दिस फंक्शन, पर्टिकुलर फंक्शन विल बी यूज्ड इन योर 12th क्लास आल्सो। तो इसको समझना बहुत जरूरी है मॉड्यूलस फंक्शन को। अगर हम इसको देखें, मैं पहले आपको कुछ एग्जांपल से शो करती हूँ। -1 मॉड्यूलस, आंसर क्या होगा 1, फिर है 0 का मॉड्यूलस दैट इज 0, 1 का मॉड्यूलस दैट इज 1, -1.1 का मॉड्यूलस 1.1, उसके बाद +1.1 का मॉड्यूलस दैट इज 1.1, 2.1 का मॉडुलस 2.1, -2.1 का मॉडुलस 2.1, है ना। तो whatever the values you are substituting here, suppose this is modulus x, है ना, तो whatever the value of the x we are substituting, you are getting the answer with the, that is the positive, that is absolute value you are getting here, positive आपके पास आ रहा है। तो अगर ये x है आपका, ये x है, ये x आपका नेगेटिव है, x ये है, तो आपके पास ये आंसर जो आया वो माइनस ऑफ -1 नहीं दिख रहा, ये +1 का मतलब क्या है, माइनस ऑफ -1, यानी माइनस ऑफ -1 क्या था, x था, है ना। अब अगर ये x, अगर मैंने अब x को चेंज कर दिया, ये रहा x आपका, तो
आंसर एज इट इज है, 1 है अगर आपके पास x तो आंसर वही 1 ही आ रहा है, दैट इज प्लस ऑफ जो भी आपने अंदर x सब्स्टिट्यूट किया था, दैट इज प्लस ऑफ x। दोबारा देखिए, अगर x की वैल्यू ये है, सपोज x है आपका -1.1, तो आंसर आपका +1.1 आया, तो -1.1 का मॉडुलस +1.1 यानी माइनस ऑफ -1.1 आया ना, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ x। और अगर यही x की वैल्यू, ये वाले x की वैल्यू पॉजिटिव है, 1.1 पॉजिटिव है, तो आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है ना। तो अब आपका जो x था वो 1.1 था, 1.1 था, ऑलरेडी पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव रहा। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो x है, जो भी ये x है, अगर ये दिस x इटसेल्फ इज अ नेगेटिव वैल्यू, अगर वो x खुद ही नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अगर वो x पॉजिटिव है, अगर वो x पॉजिटिव है, तब तो कोई उसको पॉजिटिव बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं, देन हाउ वी विल ओपन इट, तो हम इसको इस तरीके से ओपन करेंगे, ये देखिए मॉडुलस x, दिस कैन बी रिटन एज कि अगर x नेगेटिव है, अगर x लेस देन 0 है, तब तो -x लगेगा। यही बताया था ना मैंने आपसे कि अगर x लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, x लेस देन 0 का मतलब x इज नेगेटिव, और अगर x पॉजिटिव है या ग्रेटर देन पॉजिटिव, x पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव है या ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है, तो पॉजिटिव था तब तो एज इट इज आ गया था, यही था ना। ये देखो f ये था -2, तो आंसर आया माइनस ऑफ -2, तभी बनेगा ना +2। अगर x नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए इस x को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ये देखिए, अगर x नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करा, लेकिन अगर ये x पॉजिटिव है तो ये एज इट इज ही आएगा, तब तो वो पॉजिटिव है ही। तो अगर ये x पॉजिटिव है तब तो वो +x ही लिखा जाएगा। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, एक बात तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी मॉडुलस फंक्शन होगा तो उसका जो ग्राफ होगा दैट विल बी इन V शेप, जो आपका इंग्लिश अल्फाबेट में होता है V वाले में, उस शेप में होता है। तो आप इसका अगर ग्राफ बनाने के लिए आप देखो, अगर आप इसका टेबल बनाते हैं, बेटा इसका टेबल पहले, क्योंकि आप लोगों को ना टेबल से ज्यादा क्लियर होता है, आप लोग 10th में यही पढ़ के आए होंगे टेबल से। तो हम x की जब नेगेटिव वैल्यूज लेस देन 0 लेंगे तब हम इस वाले फंक्शन में पुट करेंगे, और जब ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 लेंगे तो इसमें। तो मैं -2 से शुरू कर रही हूँ, जब मैं x -2 लूंगी तो x लेस देन 0 है, तो यहाँ पुट करो माइनस, फिर x की वैल्यू कितनी है -2, तो आंसर आएगा 2। या आप यहाँ पर भी रख लो, -2 का आंसर क्या है 2, या ऐसे देख लो। अच्छा, अगर आपने -1 रखा तो आंसर आएगा 1, 0 रखा तो 0, +1 रखा तो +1, +2 रखा तो +2। तो आप इसका जब ग्राफ देखेंगे 0, 1, 2, -1, -2, 1, 2, तो क्या है 0 पर 0, -2 पर 2, -2 पर y की वैल्यू 2, -1 पर 1, 1 पर 1, +1 पर 1 और +2 पर 2। तो क्या शेप बन रही है बेटा, ये बन रही है, वी आर गेटिंग इट, दिस इज V इन शेप, ठीक है। लेकिन अब आपको मैं थोड़ा सा और जनरलाइज करा दूं, क्योंकि मैंने बोला है कि ये 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉडुलस फंक्शन क्या सिर्फ मॉडुलस x होता है, बहुत सारे और मॉडुलस फंक्शन आप लिख सकते हैं। सपोज मैंने लिखा x - 3 मॉडुलस, अगर मैं ये लिखती हूँ तो अब मुझे ये देखना है कि ये देखो, आप खुद देखो कि यहाँ पर कौन सी ऐसी वैल्यूज रखने पर ये लेस देन 0 होता है या ग्रेटर देन 0। तो इसके लिए हम इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये 0 कहाँ पर है। जैसे ये था, यहाँ ये तो x को 0 रखो 0 आ गया, लेकिन यहाँ पर x को 0 रखे तो थोड़े 0 आता है। तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि ये 0 कहाँ पर आता है।
तो जब आप रख के देख लो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 3, यानी 3 पर 0 आ रहा है। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट है 3। क्या है इसका क्रिटिकल पॉइंट? 3 है। अभी हम जरा इसको अगर देखें तो हम इसको ऐसे देखेंगे कि 0 के लेफ्ट में ये माइनस x है और 0 के राइट में ये प्लस x है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट था 0। 0 के लेफ्ट में ये माइनस x है, 0 के राइट में ये प्लस x है। लेकिन अभी क्रिटिकल पॉइंट आया है 3, तो 3 के लेफ्ट में, इसके क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में ये रहेगा माइनस, इसको एज इट इज लिखो x माइनस 3, और 0 के राइट में प्लस x माइनस 3। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, या फिर आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू, ये ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस x माइनस 3 कब है? ये when x is less than 3, और ये प्लस x माइनस 3 कब है? जब ये x is greater than equal to 3 है। अब इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे, अगर आप इसका ग्राफ बनाइए तो क्या होता है? x y, आप x लेस देन 3 वैल्यू लो पहले। x लेस देन 3 मैंने ली 2 1, तो आप इसमें पुट करेंगे। अगर आपने इसको 3 भी पुट कर लो, 3 2 1, जब आप 3 पुट करते हो, देखो लेस देन यहाँ पर रखो, इक्वल टू 3 में आप यहाँ पुट करोगे तो 3 माइनस 3 क्या है? 0। 2 लेस देन 3 है तो इसमें पुट करो तो क्या आएगा? माइनस 2 माइनस 3, दिस इज माइनस 1 तो प्लस 1 आया। फिर इसके बाद आपने 1 पुट किया, 1 इज ऑल्सो लेस देन 3, यहीं पर पुट करोगे तो आंसर कितना आएगा? माइनस 1 माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 2 दैट इज प्लस 2। अब इसके बाद आप 3 से बड़ी वैल्यूज पुट करो। 4 पुट किया तो 4 माइनस 3 1, 5 पुट किया 5 माइनस 3 इज 2, 6 पुट किया तो 6 माइनस 3 इज 3। अगर आप इसको ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5 6, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 0 1 2 3 4। अब देखिएगा 3 पर क्या आंसर है भाई? 0। 3 पर आंसर है 0। 2 पर है 1, 2 पर 1, 1 पर 2, ओके, 4 पर 1, 4 पर 1, 5 पर 2, 6 पर 3 ऐसे। और जब हम इसको ड्रॉ करेंगे, आप नीचे मत जाना बेटा, इसमें कभी भी नीचे नहीं जाना, क्योंकि y की वैल्यू आप देख लो हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन है। y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव आएगी ही नहीं, y नीचे जा ही नहीं सकता, यहाँ पर नीचे जा ही नहीं सकता, y की वैल्यू हमेशा ऊपर ही दिखाई देगी आपको। तो यहाँ पर भी आपकी y की वैल्यू, आप नीचे कभी नहीं जाएंगे, आप मॉडुलस फंक्शन ड्रॉ कर रहे हैं, नीचे नहीं जाएंगे, y की वैल्यू नेगेटिव में नहीं जाएगी। तो फिर ये v शेप में मिला आपको, मैंने कहा था कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा v शेप में मिलेगा। और वो v कहाँ पर होगा? इसका क्रिटिकल पॉइंट, जैसे इसका मैंने कहा था इसको इक्वल टू 0 रखो तो x इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो 0 पर v है। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, तो 3 पर आपका 3 पर आपका ये जो पॉइंट है v का, जहां से इसने डायरेक्शन चेंज करनी है, वो 3 पर होगा। अब इसमें डोमेन एंड रेंज की बात करते हैं। तो डोमेन क्या है इस फंक्शन का? डोमेन होता है आप x की क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं। आपने तो x कुछ भी पुट किया, कुछ भी पुट कर रहे हो, आप देखो यहाँ पुट कर रहे हो तब भी y की वैल्यू मिल रही है, यहाँ पुट कर रहे हो तब भी y की वैल्यू मिल रही है, कुछ भी आप x की यहाँ पर वैल्यू रख रहे हो तो y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ कोई ना कोई आपको मिल जाएगी, है ना। तो यानी कि डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर्स। और रेंज क्या है इसका? रेंज क्या है? रेंज है, आप देख रहे हो हमेशा y की वैल्यूज क्या है, y कभी नेगेटिव नहीं जा रहा, y कभी नेगेटिव नहीं जा रहा, वो 0 से लेके इंफिनिटी तक है। देखो ये y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं, y की वैल्यूज देखो कहां से शुरू हुई, 0 से शुरू हो गई और 0 से लेकर वो इंफिनिटी तक कहीं भी जा रही है। तो रेंज हो गया 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी, 0 इज इंक्लूडेड, दैट्स व्हाई आई हैव कंसीडर्ड दिस क्लोज ब्रैकेट। या फिर हम इसको लिखते हैं ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स यूनियन 0, क्योंकि जो पॉजिटिव रियल नंबर्स, देखो 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो हम r प्लस लिख रहे हैं, उसका मतलब ऑल
पॉजिटिव रियल नंबर्स, लेकिन जीरो इज ऑल्सो इंक्लूडेड, देयरफॉर यूनियन जीरो। चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, तो इसका भी और इसका भी डोमेन यही है, ऑल रियल नंबर्स। याद रखना, कभी मॉडुलस फंक्शन होता है तो उसमें डोमेन विल ऑलवेज रिमेन ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज विल बी ऑलवेज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी रहेगी आपकी। और ग्राफ भी आपको क्लियर हो गया होगा इससे। अच्छा, आप एक बार सोचो जरा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 होता तो y आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है तो क्या होता, कहां पर वो जो v का जो आपका जो टर्निंग पॉइंट होता है वो कहां पर होता, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, तो x इज इक्वल टू -2 पर होता, यानी ये ऐसे बनता आपका -1 -2, यहां पर आपका ये v का टर्निंग पॉइंट यहां पर होता। तो आई थिंक मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ डोमेन रेंज, इसके लिए भी डोमेन रेंज यही रहेगा, इसके लिए भी डोमेन रेंज आपका सेम रहेगा, ठीक। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू नाउ। एंड स्टूडेंट्स, इसके बाद भी और फंक्शंस हैं जिनके ग्राफ्स हैं, डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है, दैट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट सेशन।